بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام راشد ہے اور میری بہن کا نام انم ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری امی بھی ایک متوسط گھرانے سے تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بابا کی دولت دیکھ کر کئی لوگ حسد کرتے تھے اور اسی حسد کی وجہ سے ہماری زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ میری امی کے 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے ماموں تھے، اس کے بعد امی اور اس کے بعد خالہ تھی۔ جب چھوٹی خالہ کی شادی تھی تو ہم سب بہن بھائی ولیمے سے گھر واپس آ رہے تھے۔ میں اور میری بہن ماموں ممانی کی گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ میرے والدین اور نانی نانا ایک ہی گاڑی میں تھے۔ چونکہ سردی کا موسم تھا اور واپسی میں کافی دیر بھی ہو چکی تھی، تو دھند کے باعث بابا گاڑی چلاتے ہوئے نظر نہ آنے کے باعث کھائی میں گاڑی گرا چکے تھے۔ امی اور نانا کی موقع پر ہی وفات ہو گئی تھی، جبکہ بابا اور نانو کو ہسپتال لایا گیا۔ ان کے ٹانگیں اور بازو زخمی تھے اور سر پر بھی کافی گہری چوٹیں آئی تھی، جس کے باعث ان کی ذہنی حالت خراب ہونے کا بھی خدشہ لاحق تھا۔ جبکہ نانو کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں لگنے کے باعث وہ زندہ تو بچ گئیں، لیکن معذور ہو کر رہ گئیں۔ بے حد علاج کے باوجود بابا 2 دن بعد دنیا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مانو تو ہماری دنیا ہی بکھر گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی ماموں کے گھر رہ گئے۔ نانو بھی معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کے جوانعمری کی موت کا صدمہ دل سے لگائے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ ممانی نے چند ماہ تک تو ہمارا خوب خیال رکھا، لیکن اچانک ان کا انداز میرے اور میری بہن کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ ماموں تو نانو کا تھوڑا بہت خیال رکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی دیکھ بھال بھی کی جاتی رہی تھی، تو تھوڑی بہت ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہونے لگی تھی۔ لیکن جب ممانی نے میری بہن اور میرے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تو نانو کی طبیعت پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو ہم دونوں ایک اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن ممانی نے ہمارے اخراجات پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ ماموں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، جس کی اہم وجہ یہ تھی کہ بابا کی جائیداد اور ان کا کاروبار مکمل طور پر ماموں کے ہاتھ میں تھا اور سب کاموں کو ماموں ہی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ ہمارے اخراجات پر کچھ بھی نہیں بولے، لیکن ممانی کی بے جا ضد اور بحث کی وجہ سے ماموں کو ہمیں ایک معمولی سے اسکول میں داخل کروانا پڑا۔ اس سب کے باوجود بھی ممانی کا رویہ ذرا سا بھی نہیں بدلا۔ انہوں نے میری بہن سے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے اور مجھے باہر کے کاموں پر لگا دیا۔ بے وجہ ہی وہ حکم چلانے لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم دونوں کی ہی پڑھائی کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری بہن بھی مجھ سے شکایت کرتی تھی تو میں اسے ٹوک دیتا، تاکہ میری بے وجہ ہمدردی کے باعث وہ کچھ غلط قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن اچانک ہی ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کی طرفداری کرنا پڑی تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ بھائی، میں نے نانو کے کمرے میں ایک بھوت دیکھا ہے۔ میں اسکول سے واپسی کے بعد جب گھر آیا تو ممانی نے مجھے سبزی لانے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ چونکہ جہاں ماموں کا گھر تھا وہاں بس عام معمولی سی چند ایک دکانیں تھیں اور ممانی کو سبزی ہمیشہ تازہ چاہیے ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا تو میرے سے بڑا تھا، لیکن بھیجتی مجھے ہی تھی کہ وہ پڑھائی کرے گا، جبکہ میری پڑھائی کا ہمیشہ ہی حرج ہوتا رہتا۔ میں گھر لوٹا تو سبزی ممانی کو دے کر خود بہن کے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہہ ڈالی، جسے سن کر میں کافی حیران سا ہوا۔ کون سا بھوت؟ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور اطمینان سے پیتے ہوئے اپنی بہن انم سے استفسار کرنے لگا۔ دل ہی دل میں کافی تعجب خیز سا تھا، جانے وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی سی تھیں اور وہ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری بہن نے میرے پاس بیٹھ کر اس عجیب سی شکل و صورت والے کا بھرپور جائزہ یاد کرتے ہوئے میرے سامنے بیان کیا۔ میں حیرت در حیرت میں گرتا چلا گیا۔ مجھے اپنی بہن کی باتیں سن کر خود اپنی ذات پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی جادو سا ہو گیا ہو۔ تمہارا وہم ہوگا، ورنہ بھوت کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے یکدم اپنے منفی خیالات کو جھٹکا اور پھر بہن سے چڑھ کر کہا تاکہ وہ بھی ان سب معاملات میں نہ پڑے۔ آج کل ممانی کی سختیاں اور کام دام کافی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بہن نے مجھے ممانی کی تشبیہ دی ہو۔ ممانی بھی تو ایسے ہی ہو جاتی تھی، تب غصے میں آ کر بس بے جا حکم چلاتی تھی تو ان کا چہرہ خونخوار ہو جاتا۔ میں نے دیکھا تھا، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ میری بہن نے مجھے غصے سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بات نہ ماننے پر سر پر مار دوں گی۔
जबकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जाने वो किसको जिन भूत बना रही थी। अच्छा चलो आओ, मुझे भी दिखाओ कहाँ है भूत। मेरी बहन की कलाई थामे मैंने उसे पास से उठाया ताकि वो मुझे साथ ले जाकर वो सब कुछ दिखाए जो उसने देखा था। नानू के कमरे में तो कपड़ों की अलमारी के पास था। उसने मुझे फिर से दोबारा बताना शुरू कर दिया। नानू का कमरा निचले पोर्शन पर था, जबकि मम्मानी ऊपर वाले हिस्से में रहती थी। नीचे वाले में बस कुछ सामान था और नानू वहाँ एक मुलाजमा के साथ रहती थी। मैं और मेरी बहन भी मम्मानी वाले पोर्शन पर ही एक छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर थे। मैं और मेरी बहन वहाँ से नीचे वाले हिस्से में आ गए और सीधा नानू के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने नानू के कमरे में भरपूर निगाह डालकर इर्द गिर्द देखा। वहाँ कुछ न मौजूद पाकर मैंने तिरछे निगाह बहन पर डाली। अलमारी खोल लो, उसमें देखो छुपा हुआ होगा। मेरी बहन ने अपने बच्चों वाले दिमाग की सोच को दुड़ाया और वहाँ से आगे बढ़कर उसने अलमारी खुद ही खोल दी। सारे कपड़े झटक झटक कर उसने अलमारी का बुरा हशर कर दिया था। वहाँ भी तो कुछ नहीं था, सभी कुछ खाली पड़ा हुआ था। तुमने सब कपड़े भी फैला दिए, मम्मानी ने देख लिया तो बहुत बुरी तरह से मारेंगी। देख लो यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैंने बहन को देखकर गुस्से से कहा और धीरे धीरे उसके फैलाए कपड़े समेटकर अलमारी में रखने लगा, क्योंकि मम्मानी जब कमरे में आ गई तो वो उल्टा हमें ही सुनाती बिना बात की वजह जाने। यही था भाई, पता नहीं अब क्यों नजर नहीं आ रहा। अनम ने मायूसी से चेहरा बनाए देखा। मुझे उसकी शक्ल देखकर जाने क्यों हंसी आई। मैंने यकलख्त अपना चेहरा छुपा दिया। अगर हंस देता तो वो मजीद मुझे यकीन दिलाने की सर तोड़ कोशिश कर देती। तुम उठो और जाकर स्कूल का काम करो, वरना पिटाई कर दूंगा। और खबरदार जो दोबारा यहाँ आए तो पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई हो, तभी तो आजकल पढ़ाई नहीं कर रही तुम। मैंने बहन को वहाँ से उठाकर बाहर भेजा। नानू भी बाहर मुलाजमा के साथ बैठी धूप सेंक रही थी, जबकि मम्मानी अपने वाले पोर्शन में थी। मैंने बहन को वहाँ से भेजकर अलमारी को नए सिरे से दोबारा से ठीक किया। ये सब करते हुए मुझे 1 घंटा लग गया था। अचानक अलमारी बंद करते मुझे वहाँ खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया था। वो धब्बे एक रंगदार से कपड़े के साथ लगे हुए थे, जैसे किसी ने उन धब्बों से अपने हाथ साफ किए हों। मैं काफ़ी हद तक उन धब्बों को देखकर डर गया था। बाकी के कपड़े जो पड़े थे, 2-3 कपड़ों के साथ भी वैसे ही हूबहू खून लगा था। कोई अजीब सा तासुर था। मेरे हाथ पैर कांप गए। झटके से मैंने वो सारे कपड़े वहीं फेंके, क्योंकि बाहर से यकलख्त कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। मैंने अलमारी बंद कर दी और बाहर आ गया, क्योंकि मुलाजमा नानू को लिए कमरे में आ गई थी, जबकि मेरा दिल तो अभी भी धड़क रहा था। खौफ से हाथ पैर कांपे जा रहे थे। ये कागजात रख लो, संभाल कर रखना, मैंने 2 दिन बाद वापस लेने। मैं अपने कमरे में बैठा था कि अचानक मुझे मामू की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एकदम निगाह उठाई तो सामने ही मम्मानी के कमरे में खड़े मामू दिखाई दिए। वो मम्मानी को एक फ़ाइल पकड़ा रहे थे, जिसे देखकर मैं चौंका। चंद दिन पहले ये फ़ाइल मामू मुझे अपने साथ एक दफ्तर में लेकर गए थे और वहाँ से मेरी शिनाख्त के बाद वो कागजात लाए थे। जब मैंने पूछा तो मामू ने बताया वो कागजात मेरे बाबा के घर के थे और साथ ही कारोबार के भी थे। ये किस चीज़ के कागजात हैं? मम्मानी ने काफ़ी ताज्जुब से मामू को देखकर पूछा। ये राशिद और अनम के घर के कागजात हैं। जब बड़े होंगे तो इन्हें देने, अभी छोटे हैं तो नहीं दे सकता। मामू ने धीरे धीरे उन्हें सब बताया तो मम्मानी यकलख्त मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट मैंने देखी। उस पल मैं स्कूल का पेपर याद कर रहा था, लेकिन पेपर भूलकर मैं उस पल मामू और मम्मानी के माबेन बातें सुनने में मसरूफ़ था, जबकि पेपर भी मेरा उस पल बहुत ज़रूरी था। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ। मम्मानी ने वो कागजात लेकर संभाल लिए थे, जबकि मामू ने अपने जूते पहने और वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद अचानक मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मम्मानी ने वो कागजात मामू की अलमारी में रखने की बजाय एक सूटकेस में डाल दिए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? मेरे मामू का बेटा भी उसी कमरे में मौजूद था। मम्मानी को ये हरकत देखकर उसने अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं कर रही। मम्मानी ने वो कागजात रखकर सूटकेस बंद किया और उसे उठाकर एक महफूज जगह पर छुपा कर रखने लगी। अब इन कागजात को क्यों छुपा रही हैं? बाबा ने तो संभाल कर अलमारी में रखने को बोला था। मामू के बेटे ने ताज्जुब से माँ को देखा। वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक हैरत ज़दा खड़ा था।
اسے اپنی ماں کی حرکات و سکنات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس حیران پریشان سا وہیں پر کھڑا تھا۔ یہ کاغذات میں اس لیے چھپا رہی ہوں کیونکہ میں یہ راشد اور انم کو واپس نہیں کرنے دوں گی، بلکہ جب یہ تھوڑے بڑے ہوں گے تو خود تمہارے نام کرواؤں گی۔ ممانی نے سب سمیٹ کر رکھ دیا تو بعد میں وہیں اپنے بستر پر بیٹھ کر بیٹے کے ہمراہ اس کو کہنے لگی، جبکہ میں یہ سب سن کر ہکدک رہ گیا۔ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ممانی اس حد تک کچھ سوچ سکتی ہیں۔ میری نظریں پتھرا سی گئی تھی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ نام کرے گا؟ ماموں کے بیٹے نے کچھ دیر سوچ کر اپنی ماں سے سوال کیا، جبکہ میرا دل اس پل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں ان پر جتنا ظلم کر رہی ہوں، ان کے دل میں ڈر بیٹھ چکا ہے کہ میں گھر سے نکال دوں گی، اس لیے جب بھی میں نے دستخط کرنے کا بولا یہ تبھی کر دیں گے۔ ممانی کی شاطر دماغی چالیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بالکل یقین نہیں ہوا کہ وہ کچھ ایسا بھی سوچ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میں چپ ہی رہا۔ میں اس پر احتجاج تک نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی ان کے روبرو جا کر لڑنے کی چاہ ہوئی تھی۔ میں بس چپ چاپ یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ واہ امی، آپ تو چالاک ہیں، ماموں کے بیٹے نے ممانی کو ہنستے ہوئے کہا تو ممانی نے ایک بلند و بانگ کہکا لگایا، جبکہ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھے غائب دماغی سے اپنی کتابوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں پیپر کو دیکھ کر کچھ پڑھ پاؤں۔ بھائی، کیا ہم ساری زندگی ماموں کے گھر ہی رہیں گے؟ رات کو ہم کھانا کھا کر جب کمرے میں آئے تو انم مایوس سے ایک کونے میں بستر میں دب کے بیٹھی تھی۔ چند دیر قبل ہی اس نے کھانا کھایا تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بے حد پریشان سی تھی اور خوف زدہ بھی۔ وہ چپ چپ سی تھی۔ میں نے وہاں پوچھنے کی زحمت نہیں کی، لیکن اس پل جب کمرے میں داخل ہوا میں تو اس کے سوال پر مجھے حیرانگی سے ہونے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے آگے بڑھ کر انم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے حد محبت سے پوچھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کافی نرم دل کی مالک ہے اور چھوٹی سی عمر میں جتنی باتیں وہ سن لیتی تھی انہیں وہ گھنٹوں تلے بیٹھے سوچتی رہتی۔ بالآخر تنگ آ کر مجھ سے جواب طلب کرتی تھی۔ ممانی روز ڈانٹ دیتی ہیں، بات نہ مانوں تو مار بھی دیتی ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ہمارے امی بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے ہمیں ان ظالم لوگوں کے پاس چھوڑ کر؟ میرے محبت سے پوچھ لینے پر وہ یکدم ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ مجھے انم کی ذہنی کیفیت پر گمان ہوا، جیسے ابتر سی حالت اس کی ہے، وہ کافی رنجیدہ ہے۔ گلے لگائے میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ مزید رونے لگی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر مجھے تھوڑا سختی سے اسے ڈپٹ کر چپ کروانا پڑا۔ چند ثانیے خاموش ہو کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر یک لخت چپ ہو گئی، جس پر میں نے اسے ایک چاکلیٹ جیب سے نکال کر دی، جو میں سبزی لینے گیا تھا تو اس کے لیے ہی لی تھی، لیکن مجھے دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ابھی تمہیں یہ سب صبر و تحمل سے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے چاکلیٹ کھول کر دیتے ہوئے تھوڑی تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں پر اور کس کے پاس رہیں گے؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور حیرانگی سے پوچھا۔ چونکہ جب سے والدین گزرے تھے اس کے بعد سے اب تک ہم نے ماموں کے گھر کے علاوہ اور کہیں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اب بہن کو بڑے ہو کر کہیں جانے کی تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ رونا دھونا بھولے وہ بس میری شکل دیکھنے لگی۔ ابا کی جائیداد ہمارے نام ہے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو سارا کچھ ہم دونوں کے نام ہو جائے گا۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں نا، تو ابھی ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے جو ماموں اور ممانی کے بقول سب کچھ سنا تھا وہی بہن کو تھوڑا بہت بتایا اور ساتھ ہی گھر کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتایا تاکہ وہ اطمینان سے رہ سکے اور مجھے پریشان نہ کرے۔ میں بہن اور ممانی کی سازشوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے اور کس طرح بات کروں۔ اوپر سے جب وہ خون دیکھا تھا تو ابھی بھی یہی سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ انم نے کافی تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہر بات آج ہی کے دن جاننے کی متجسس سی بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنی ذہنی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں میں نے ممانی کے کانوں سے سنی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیں، تبھی وہ ہمیں ابھی سے ڈرائے ہوئے تاکہ جب ہم بڑے ہوں تو ایسے ہی ڈرا کر ہماری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر لیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پل ممانی کا چہرہ بے نقاب کرنا پڑا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پل بہن کو مطمئن کرنے کی کوششوں میں کر ڈالا تاکہ وہ پرسکون ہو کر بیٹھ سکے
और मैं भी चैन का सांस ले सकूं। हम नाम नहीं करेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों अपने घर चले जाएंगे। ये बातें सुनकर अनम के चेहरे पर काफ़ी देर तक एक इत्मीनान झलका था, जिसे देखकर मैं भी थोड़ा मुतमईन हुआ कि चलो इसका मूड तो कुछ बेहतर हुआ है, जबकि मुझे ज़रा सी हंसी भी आई थी। हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। सुबह उठकर पहले नमाज भी पढ़नी है और फिर स्कूल जाना है। कल भी तुम नमाज के लिए बहुत मुश्किल से उठी थी। जब ऐसे बातों में लगी रहोगी तो नमाज के औकात ख़राब हो जाएंगे। मैंने बहन से प्यार से कहा और उसे सोने की दुआएं पढ़ाकर सोने का बोला, जबकि हमें नमाज की पाबंदी अम्मी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ छोटी सी उम्र में ही सिखा दी थी, ताकि हम दोनों ही दुनियावी और आखिरत के हर मामलात को शुरू से ही समझ पाएं। चूँकि हमारी अम्मी खुद भी एक ज़हीन आलिमा थी, जब उनकी फौतगी हुई तब हम दोनों ही नमाज मुकम्मल याद दहानी से पढ़ना सीख गए थे, और ये आदत अम्मी की बदौलत इतनी पक्की हो चुकी थी कि अब अम्मी को गुजरे 1.5 साल होने के बावजूद भी सुबह नमाज पढ़े बगैर नाश्ता नहीं किया जाता था। भाई, मैं आज नानू के कमरे से अपनी किताबें उठाने गई तो वहाँ पर खून मौजूद था। जब नानू के करीब जाकर बैठी तो पता चला उनके कपड़ों के साथ भी खून लगा हुआ था। मैं सारा दिन काम में, पढ़ाई और मम्मानी के हुक्म में इस हद तक मसरूफ़ रहता कि बाकी कुछ का ज़रा सा भी इल्म नहीं होता। अनम जब भी कुछ बताती तो मुझे इल्म हो जाता कि आज घर में क्या कुछ हुआ है। आज भी मैं स्कूल से वापसी के बाद मामू को खाने देने चला गया था, क्योंकि वो घर के ही खाने के आदी थे। जब शाम घर लौटा तो मदरसे से चला गया। वापस आया तो नानू की दवा के लिए भेज दिया गया। वहाँ से वापसी पर रात का खाना खाकर अब जाकर बैठा तो बहन ने आकर नया शोशा छोड़ दिया था। तुमने भी नानू के कपड़ों के साथ खून देखा था? मैंने एकदम उछलकर अपनी बहन से पूछा। उस पल मेरा दिमाग एकदम से फटने के करीब महसूस होने लगा। जाने क्या कुछ हो रहा था और क्या होने वाला था। जी, लेकिन आप इतने हैरान क्यों रहे? मेरी बहन ने मुझे ताज्जुब से देखते हुए पूछा, जिस पर मैं गड़बड़ा गया। इससे अगर कह दूंगा कि हाँ मैंने भी देखा तो वो डर सकती थी, इसलिए उसे ना बताने की ठान ली। मैं हैरान तो नहीं हूँ, बस वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं तुम क्या कुछ देखती रहती हो। मैंने अनम को छिड़का ताकि वो मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। अनम मुझसे है तो छोटी, लेकिन फिर भी बातों को तेज़ी से पकड़ लेती थी, और जब तक अपनी बात को पूछ ना ले तब तक चुप नहीं बैठती थी। अच्छा छोड़ें, आपको पता है जब मैंने नानू के कपड़ों पर खून देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे नानू मुझे कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन अचानक मुलाजमा और मम्मानी कमरे में आ गई तो नानू एकदम से चुप हो गई थी। अनम की तवज्जो उस पल में अपनी जानिब से हटा चुका था, लेकिन उसने अपनी बात दोबारा वहीं से शुरू कर ली जहाँ से उसने छोड़ी थी। नानू को बोलने से कौन रोक सकता है? तुमने दोबारा उनके पास जाकर नहीं पूछा था? मैंने बहन से पूछा। दिल ही दिल में बेहद खौफ लाहक हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दिल होल गया था। 2 बार गई थी, लेकिन वहाँ पर मुलाजमा बैठी हुई थी। कभी कहती कि नानू सो रही हैं और कभी कहती कि उनके सर में दर्द है, फिर बात करेंगी। मेरी बहन ने मुझे दिन की सारी सूरत हाल बताई। जाने क्या था कि जिसकी समझ भी नहीं आ रही थी और समझाया भी नहीं जा रहा था। कुछ तो था जो हम सबसे छुपा कर रखा हुआ था और जानने की कोशिश में मजीद छुपाया जा रहा था, ताकि हमें भिनक तक ना पड़े। जबकि उसको जानने की कोशिश में मामला मजीद बिगड़ता जा रहा था, सुलझने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, जिस पर मुझे हद दर्जा चिढ़ हो रही थी। अच्छा मैं जाऊंगा, मुझे लग रहा है वो ठीक हो रही हैं, तभी तो बात करने की कोशिश की है। मैंने अपनी जानिब से बहन को मुतमईन करने की कोशिश की, ताकि वो इस मामले में अपना स्कूल और मदरसा छोड़ कर न पड़ जाए। जबकि उस पल मेरा नुकसान हो रहा था, उसका भी हो सकता था, और मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो ये ज़रूरी था। हाँ यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो खून पता नहीं कैसे उनके कपड़ों पर लगा हुआ था। मेरे मुतमईन करने के बावजूद वो बड़बड़ाने लगी। मुझे उसकी जासूसी फितरत पर बेहद गुस्सा आने लगा था, जिसे मैंने जब्त किया। मैं पता करा लूँगा, शायद दवा वगैरह गिर गई हो। तुम परेशान न हो, अब सो जाओ। अनम सो तो गई थी, लेकिन मैं काफ़ी देर तलक नानू और मम्मानी के रवैये और मुलाजमा की बातों को सोचता रहा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में क्या कुछ हो रहा है। बहन ने कहा कि उसने कुछ खौफनाक चेहरा देखा है, तो मुझे ताज्जुब हुआ। उसके बाद फिर खून से रंगे कपड़े दिखाई दिए तो अनम को भी नहीं बताया।
लेकिन अब नानू के ज़ेबतन किए कपड़ों का खून से रंगे होना मुझे बेहद लर्जा गया। कभी सोचता कि अनम ने शायद वाकई कोई ऐसा चेहरा देखा होगा, तो कभी खून से मुताल्लिक सोचने बैठ जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा था। 2 दिन कबल ही मैं खुद नानू के कमरे में गया था। मेरे बैग वगैरह नानू के कमरे में ही रखे होते थे। जब बैग उठाए मैं काम करने लगा तो अचानक चटकी पर टंगे कपड़ों पर खून के दाग नजर आए, जिन्हें मैंने एक नज़र डाली और वहाँ से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे एक अजीब सा वहम हो गया था जिसने मेरी रोज़मर्रा की रूटीन को एकदम से ख़राब करके रख दिया था। राशिद, ये कपड़े धोबी को दे और वापसी पर आते हुए होटल से रोटियां भी ले आना। मैं स्कूल का काम याद करने बैठा ही था कि अचानक मम्मानी मेरे पास चली आई। उनके हाथों में कपड़ों की बड़ी सी गठरी थी जो उन्होंने वहीं पर पटक दी। उस पल हम सभी नीचे वाले पोर्शन पर थे। आज इतवार का दिन था। मम्मानी और मामू धूप पर चारपाइयाँ बिछाए बैठे हुए थे और उनके बच्चे भी वहीं पर थे, जबकि नानू की चारपाई भी करीब ही रखी थी। वह हम सब बच्चों को हंसते खेलते हुए काम में उलझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उनकी हालत भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही थी। ये बात मामू ने हमें सुबह सवेरे बताई थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया था जिसने नानू का मुकम्मल चेकअप किया था। जी ठीक है, मैंने कपड़ों की गठरी को उठाकर एक जानिब खिसका कर रखा और जल्दी से अपना काम मुकम्मल करने लगा जो चंद सवात पर ही मुश्तमिल था। मम्मा ने मुझे हाथों में गठरी थमाकर ऊपर वाले हिस्से में चली गई थी और थोड़ी देर बाद लौटी तो उनके हाथ में पर्स था जिसमें से रोटियां लाने के पैसे निकालकर उन्होंने मुझे पकड़ाए थे। दोबारा वहां से जाने लगी क्योंकि उन्होंने पर्स भी वापस रख कर आना था। अपने पैसों के मामले में वो काफ़ी शक्की तबीयत की मालिक थे, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। और हाँ, मेरे लिए खमीर वाली रोटी लाना। मम्मानी ने जाते जाते पलट कर मुझे देखा तो मैंने जवाबन खामोशी से ठीक है मैं सर हिला दिया। कितनी रोटियां मंगवा रही हो? मामू ने यकलख्त मम्मानी से सवाल किया। 7 रोटियां काफ़ी हैं, 2 आप खा लेंगे और 3-4 रोटियां तीनों बच्चे खा लेंगे, 1 मैं खा लूँगी। माँ जी तो दूध दलिया ही खाती हैं, उनके मैदे के लिए ठीक नहीं है। मामू के सवाल पर पहले तो मम्मानी गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर चंद ही लम्हों में संभल कर एकदम से पूरी तफसील के साथ बताया। उनके ना बताने की यही वजह थी कि मामू को मम्मानी के इस जालिमाना रवैये की ज़रा भी भिनक नहीं पड़ी थी और हमें भी सख्ती से डरा धमका कर रखा था कि अगर हम मामू को मम्मानी की असलियत बताएंगे तो मम्मानी हमें मार देंगी या फिर हमें घर से बाहर फेंक देंगी, जिस पर हमने अपने लब सी लिए थे और ये राज दिलों में छुपा लिया था। बच्चे तो वैसे भी मम्मानी के हाथों में थे और नानू तो कुछ कहती नहीं थी, और ये दोनों क्या खाएंगे? मामू ने ताज्जुब से हमें देखते हुए सवाल किया। उनके लहजे में काफ़ी सख्ती थी। मम्मानी को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। इन दोनों को होटल की रोटी पसंद नहीं है, इसीलिए नहीं मंगवा रही। मम्मानी ने पहले हम दोनों को एक नज़र देखा। अनम करीबी नानू के पास बैठी हुई थी। उसे कहरबार नज़रों से देखकर फिर मुझे देखते हुए मामू को जवाब दिया था। क्यों नहीं पसंद? क्या हुआ राशिद बेटा, क्यों नहीं खाते? तुम तो बचपन में बड़ी फरमाइशें किया करते थे कि होटल के नान ही खाने, अब क्या हुआ? मैं जब छोटा था तो तब मामू हमारे घर आते जाते थे। मैं नान की फरमाइश किया करता, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता था। मामू को आज ये बात याद थी। जब मम्मानी को हमारे ऊपर पैसे खर्च करने पर गुस्सा आता था, इसलिए वो हम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी बल्कि झिड़क देती थी। अभी जब मामू ने वजह पूछी तो मेरा जी चाहा कि मैं मामू को सच्चाई से आशना कर दूं, लेकिन मम्मानी की सख्त गिर नज़रों ने मुझे अपने हिसार में लिए हुए थी और मैं सच बोल ही नहीं सकता था। मामू अच्छे नहीं लगते, घर की रोटी पसंद है, वही खा लेते हैं और होती भी मज़े की है। मैंने नाचार मुस्कुराते हुए मामू को मुतमईन किया। मैंने एक नज़र अनम पर डालना चाही तो नानू पर नज़र पड़ गई, जिनकी आंखों में आंसू मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे, जबकि सबके सामने वो मुस्कुराए जा रही थी। उनकी हंसी मुझे बेहद अजीब सी लगी। वो जी इनको पराठे पसंद है, सुबह के पराठे बने हुए, ये खा लेंगे। क्यों राशिद? मम्मानी ने मामू के बोलने से पहले ही खुद ही बोलकर बात ख़त्म करना चाही ताकि मामू मज़ीद इस मौजू पर बहस न कर सकें, जिसकी वजह यही थी कि उन्हें डर था कि बहस छिड़ने के बायस कहीं हम दोनों बहन भाई सच न उगल दें। जी मम्मानी, हम खा लेंगे, हमें वही पसंद है। जाओ अनम, तुम स्कूल का काम कर लो, तब तक मैं भी रोटियां लेकर आता हूँ। मैंने अनम को खामोश बैठा देखकर उसे स्कूल के काम पर मुतवज्जह किया। वो सुबह से ही नीचे बैठी हुई थी। उससे कहकर मैंने अपना बैग उठाया और नानू के कमरे में वापस रख दिया।
अच्छा बेटा जाओ, जल्दी वापस आना, देर मत कर देना, बहुत भूख लगी है। तब तक मैं हांडी को एक नज़र देख लूँ, गोश्त तो गलने में भी वक्त है। मम्मानी ने मुझे इतने प्यार से पुकारा कि मैं जी जी करके उनके चेहरों की मुनाफकाना हरकतों पर जिद चोने लगा। मामू के सामने वो काफ़ी नरम गौर मोहब्बत से पेश आ रही थी, जबकि मामू जब मौजूद नहीं होते तो यही मम्मानी इतनी नफ़रत से हमें हकारत से देखती कि जी चाहता कि ज़मीन में ही अपने आप को दफन कर डालें। ऊपर से वक्त पर कभी खाना नहीं मिलता था तो कभी स्कूल के पैसे नहीं देती थी, जबकि काम हर किस्म का ज़बरदस्ती मार कर डांट कर करवाती थी, जिस पर हम एहतजाज भी नहीं कर पाते थे। सबसे पहले मैंने धोबी को कपड़े देने का सोचा था कि रोटियां वापसी पर ले लूं, क्योंकि धोबी का घर काफ़ी दूर था। अगर जाते हुए ले जाता तो रोटियां वापस आते आते देर हो जाती, वो ठंडी भी हो जाती। इसीलिए मैंने वापसी का सोचकर धोबी के घर की जानिब निकलने का सोचा। भाई आपको पता है, आज जब मैंने मम्मानी की बात नहीं सुनी तो मम्मानी मुझे मारने लगी तो अचानक वो गिर गई, जैसे उन्हें किसी ने गिरा दिया हो। शाम को जब मैं धोबी को कपड़े देकर रोटियां लेकर आया तो सब खाना खाकर अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं मदरसे चला गया था, मामू के बच्चे ट्यूशन चले गए थे, बहन मेरी स्कूल का बचा हुआ काम मुकम्मल करने में लगी हुई थी, जबकि मामू घर से चले गए थे और नानू भी अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि धूप ढलती जा रही थी। मदरसे से जब 5 के बाद मैं लौटा तो बीच दरवाजे में बहन आकर खड़ी हुई, जैसे मेरी ही वापसी की मुंतज़िर हो। मुझे देखते ही उसने जब ये इंकशाफ किया तो मैं तो चौंक ही उठा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मम्मानी की बात सुन लिया करो, वरना वो हमें घर से ना निकाल दें। मैंने मामले की संगीनी जाने बिना ही बहन को प्यार से कहते हुए अंदर बढ़कर हाथ पैर धोए, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर रोड पर काफ़ी कीचड़ वगैरह फैला हुआ था। मेरा मदरसा भी थोड़े कच्चे इलाके में ही वाक़ था। नहीं भाई, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे लगता है मम्मानी को हमें मार कर खुशी होती है, हमेशा ही मारती रहती हैं। बहन की बात सुनकर मैं हाथ पैर धोते धोते यकलख्त रुक गया। उसकी बातें और अंदाज ऐसा था जैसे वो इन हालात से शदीद किस्म की आजिज़ आ चुकी है और बस किसी भी तरह चुप करके बर्दाश्त कर रही है। जिस तरह के मैं उसे सबक सिखा रहा था, उस सब के बाद यही हालात होने बनते थे। वो जवाब देना चाहती थी तो मैं रोक देता, वो एहतजाज करने की ठान लेती तो बड़ों का एहतराम अम्मी की नसीहतों के अंबार लगाकर उसे मैं सब्र पर राज़ी करता रहता, जिस पर वो कायल भी बमुश्किल ही सही लेकिन हो जाती। लेकिन फिर भी वो दिल ही दिल में कुढ़ती रहती, बस मेरी वजह से कभी बताती ही नहीं थी। बस ज़रूरी बात कर देती या फिर बेहद तंग होने के बायस एक ही मर्तबा फट पड़ती। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। और मम्मानी किधर है, ठीक तो है ना? मैंने हाथ पैर धोकर फिक्रमंदी से मम्मानी का पूछा। मुझे उनके गुस्से का यकदम याद आ गया, और जाने अब वो किस पर क्या कुछ करने वाली थी। पता नहीं, गिरने से उनके पैरों में मोच आ गई थी। मोच ठीक करवाने गई तो पैर ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के पास गई। वहाँ डॉक्टर ने एक्सरे किए, वो कहते हैं कि पैर की हड्डी ठीक है, कोई मोच भी नहीं है। जबकि मम्मानी के पैर को कोई हाथ लगा दे तो चीखें मारती हैं। मामू बता रहे थे तो मैं हैरान सी हो रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं पूछ कर आता हूँ, तुम यहीं रहो। ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अगर तुम्हें देखेंगी ना तो मज़ीद गुस्से में आ जाएंगी। मैंने अनम का गाल थपथपाकर उससे मुतमईन किया। उसने सर इस बात में हिला दिया। मैं भी धीरे धीरे कदम उठाए मम्मानी के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। दिल ही दिल में काफ़ी डर भी लग रहा था कि पता नहीं मुझे देखकर वो क्या कुछ बोलेंगी या क्या हुक्म सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मानी, कैसी हैं आप? अनम बता रही थी कि आपके पैर में दर्द है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और फिर अंदर झुककर एक नज़र सबको देखने के बाद सबको सलाम करके मम्मानी को मुखातिब किया। मुझे देखकर उनके तेवर ही बदल गए। चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली और एक गहरी सांस खारिज करके मुझे कहरबार नज़रों से देखने लगी। इतना तो मुझे भी अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाले लम्हों में क्या कुछ होने वाला था, लेकिन चुप खड़ा उनके बोलने का मुंतज़िर उनके पैरों के पास बैठे बंधी हुई टांग पर हाथ रखा। हाँ, बहन ने तो गिरा कर माजूर करने में कसर नहीं छोड़ी, अब तुम भी पूरी कर लो। हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मम्मानी ने ज़ोरदार चीख मारते हुए मुझे अपना हाथ हटाने को कहा तो मैं चंद लम्हे तो यूं ही नज़रों से उन्हें देखता रहा, फिर यकदम अपना हाथ उनके पैर से हटा लिया। मम्मानी, मैं तो हाल पूछने आया था। मैंने डरे सहमे अंदाज में अपना दिफा करने की कोशिश की। मैं जानता था इसका कोई फ़ायदा नहीं। मम्मानी ने मेरे खुलूस को एक ढोंग समझकर नज़रअंदाज कर देना और झिड़कना ही था। मुझे समझना तो शायद इस दुनिया में लिखा ही नहीं था।
मुझे किसी के हाल पूछने की ज़रूरत नहीं। खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे में आए, दफ़ा हो जाओ। मम्मानी की खरी खोटी बातें सुनने के बाद मेरी खुद की हिम्मत भी नहीं रही कि दोबारा उनके कमरे में कदम रखूं। बस चुपचाप वहाँ से निकल आया और सीढ़ियों पर बैठे घुटनों में सर दिए बैठ गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करता। तुमने मेरी मामा को गिराया है? दूसरे दिन सुबह सवेरे मामू का बेटा तनफन करता सीधा हमारे कमरे में आ घुसा और आते ही अनम पर चिल्लाने लगा। नहीं, मैंने उन्हें नहीं गिराया, वो खुद गिर गई थी। अनम ने खौफजदा होकर मेरे पीछे छुपते हुए जवाब दिया। वो डर गई थी। तुमने उन्हें धक्का दिया इसीलिए वो चल नहीं पा रही। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा मेरी मामा को? मामू का बेटा दोनों हाथों के सामने अनम का गला दबाने के लिए आगे बढ़ा। अगर मैं बीच में हायल न होता तो शायद वो ये कारनामा भी अंजाम दे डालता। मुझे उस पल मामू के बेटे पर बेहद गुस्सा आया। कैसे वो अनम पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे तकरीबन 1 साल ही छोटा था, लेकिन अंदाज बड़ों जैसा अपनाया था। क्या कर रहे हो? अनम ने मम्मानी को नहीं मारा, तुम क्यों इसे मार रहे हो? मैंने आगे बढ़कर मामू ज़ात को थोड़ा पीछे की जानिब धकेला। जवाबन उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने अनम को थोड़ा परे किया। इस हाथापाई में कहीं हम दोनों की वजह से उसे कोई चोट न लग जाए। तुम दोनों बहन भाई हमारे घर ही क्यों आए हो? दफा हो जाओ। बिला वजह हमारे घर आ गए। मामू के बेटे ने अनम को कहरबार नजरों से देखते हुए चिल्ला कर कहा। वैसे तो हमारी किसी से बनती नहीं थी, बस काम और स्कूल के अलावा खेलने का भी मौका नहीं मिलता था, इसलिए मुझे मामू ज़ात के इस रवैये और लहजे का पहले कभी इल्म नहीं हुआ था। लेकिन ये मंजर देखकर आज मुझे सही मायनों में चिढ़ हो गई। साद, ये क्या कर रहे हो? किससे सीखा है ये सब कुछ? कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें? अचानक शोर के बायस मामू कमरे में चले आए और साथ के अंदाज और एतवार देखकर उनके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा अपनी जानिब मोड़कर उसका कंधा झिंझोड़ कर इस्तफसार किया। बाबा, इन्होंने हमारी मामा को गिराया, वो चल नहीं पा रही। साद ने रोते हुए गुस्से से हमें देखकर मामू से शिकायत लगाई। जबकि अनम बेआवाज रोए जा रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी। तुम्हारी माँ खुद गिरी, अनम ने नहीं गिराया। तुम्हें समझ नहीं आती ये बात? मामू ने भरपूर ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो साद के इस रवैये को देखकर गुस्से में। नहीं बाबा, आप मेरा यकीन करें, मामा को अनम नहीं गिराया है। साद ने सर नफी में हिलाते हुए अपनी बात पर जूं का तू कायम रहकर कहा। जबकि मुझे तो साद की हरदर्मी पर हैरत थी। खबरदार जो दोबारा मुंह से ऐसी बात मैंने सुनी तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामू अपने जलाल में आ गए थे। एकदम हाथ उठा और सीधा साद के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। जितने वक्त से हम दोनों बहन भाई उस घर में रह रहे थे, इससे पहले मामू ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज यूं साद पर हाथ उठाया देखकर मुझे खुद भी डर लगने लगा। आप हमेशा यही करते हैं, हमारी बात मानने की बजाय इन दोनों की सुनते हैं। साद ने बेयकीनी से मामू को देखा कि जैसे उन्होंने हाथ उठाया था, फिर यकलख्त मुंह पर हाथ रखे मामू से कलाम करके रोते हुए वहां से निकल गया। मामू, मैंने वाकई में कुछ नहीं किया। मम्मानी को ऐसे ही लग रहा है कि मैंने उनको गिराया है। अनम साद के जाते ही मेरे पीछे से हटकर मामू के सामने आ गई और सर झुकाए मामू से कहा। अनम बेटा, अब जाओ, तैयारी करो, स्कूल की देर हो रही है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मामू ने उसके सर पर हाथ धरते हुए तसल्ली दी। अनम के जाते ही मामू ने मुझे भी स्कूल में तैयारी का कहा और वहाँ से चले गए। मैं अब तुम्हारे नवासी और नवासी को मार देना है। पहले मैंने जायदाद देखी थी, लेकिन जायदाद की बजाय इन्होंने मेरे बेटे को अपने बाप से थप्पड़ मरवा दिया। अब बात मेरी औलाद पर आ गई है। रात के वक्त अनम को नानू का ख्याल आया। मुझे भी उनके खून की वजह जाननी थी और ये देखना था कि नानू ठीक हो रही हैं या नहीं। इसलिए मैं और अनम नानू के पास आए, लेकिन अंदर का होलनाक मंजर देखकर तो दिल ही कांप गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस हद तक गिर सकता है। खास तौर पर खूनी रिश्ते तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सामने के मंजर ने उम्मीदों पर पानी फेरा। सामने ही मम्मानी नानू के गाल सख्ती से जकड़े हुए थे। नानू की आंखों में तकलीफ के बायस आंसू मुतवत्तर गिरते जा रहे थे। इन्हें कुछ मत कहना, मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, इन्हें कुछ मत कहना। नानू ने खुद को छुड़ाने वाले अंदाज में फरियाद करते कहा। इन्हें मारने के बाद तुम्हें भी मार दूंगी। तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी नहीं। बहुत सह लिया। छुरी चाकू के वार से अब तक तो मर जाना चाहिए तुम्हें। मम्मानी ने चाकू से नानू के बाजू पर वार करते हुए दबी दबी आवाज में कहा। जबकि ये मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चीखते हुए आगे बढ़ा। मेरे साथ अनम की भी ऐसी बुरी हालत थी, वो थर थर कांपे जा रही थी। मम्मानी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े, नानू को क्यों मार रही हैं? क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका? मैंने नानू को छुड़ाते हुए चीखते हुए उन्हें दूर होने को कहा। बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन आज चलो तुम तीनों को ख़त्म करने से पहले सारी हकीकत बता देती हूँ।
मम्मानी के सर पर एक तरह से खून सवार था। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़ी थी। तुम दोनों के माँ बाप जब मर गए तो तुम्हारी जायदाद हथियाने को मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी नानी की जहनी हालत ठीक नहीं थी। और ठीक होते ही तुम्हारी नानी ने कह दिया कि वो अपने बेटे को मेरी असलियत बता देगी। इसलिए मैं इनको रोज़ छुरी चाकू से इनके जिस्म को ज़ख्मी करना शुरू हो गई थी, और साथ धमकी भी दी कि जिस दिन मेरी हकीकत खोली गई उस दिन मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। मम्मानी की जैसे जैसे हकीकत खुलती गई मुझे समझ आता गया कि इस सब में मुलाजमा भी बराबर की शरीक थी। उसी की शय पर यह सब कुछ हुआ था। अभी भी वो सामने खड़ी चुपचाप होलनाक मंजर देख रही थी। मुझे सारी समझ तो आ गई, दिल ही दिल में गुस्सा भी आने लगा। वो खून तभी पड़ा हुआ था। मैं कहती थी नानू के साथ कुछ हुआ है, आप मान नहीं रहे थे। अनम ने मुझे झिंझोड़ कर मुतवज्जे करते हुए कहा, जबकि ये वक्त ऐसी बातों का हरगिज़ नहीं था। हाँ, तुम तो बड़ी तेज तरार हो, तुम्हें सबसे पहले मारूंगी, रुको जरा, मम्मानी ने कहते हुए अनम की गर्दन पर छुरी रखी। मैं और नानू एकदम चिल्लाए। मैंने आगे बढ़कर अनम को छुड़ाना चाहा तो मम्मानी ने मुझे धक्का दिया और मुलाजमा ने नानू को परे धकेला। अचानक से कमरे में एक जोरदार गिरने की सी आवाज़ आई और वहाँ एक खून से रंगीन चेहरा दिखाई देने लगा। मम्मानी के हाथ से छुरी दूर जा गिरी। वो हकदक से ये मंजर देखने लगी। तो तुम कौन हो? मम्मानी ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, जो मम्मानी की जानिब ही बढ़ रहा था। वही जो तुम्हें सबक सिखाएगा, जोरदार कहका लगाते उस खूनख्वार से चेहरे ने कहा। लेकिन वो कौन, कहाँ से आए हो? मम्मानी खौफ से कांप रही थी और उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैं जिन जादू का मालिक हूँ। मासूम बच्चों पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बिगाड़ा है? इनके जायदाद हथियाने तक तो ठीक था, लेकिन इनके ही पैसों से खाते हुए इन पर ही जुल्म कर रही हो। काफी वक्त से देख रहा था तुम्हारे ये सारे करतूत। उस दिन मैंने ही तुम्हें सबक सिखाने को गिराया था, लेकिन तुम्हें फिर भी अक्ल नहीं आई। बजाय इसके कि तुम इंसान बन जाओ, ड्रामेबाजियां करने लग गई हो। हुसैनजादे ने जब अपना तारुफ करवाकर मम्मानी की हकीकत जानते हुए कहा। मैं तो हैरान रह गया। जिनजादे ने मम्मानी की गर्दन पर दोनों हाथ रखे उसको पंखे से लटका दिया, साथ ही दीवारों से उसका सर पटकने लग गया था। मम्मानी की चीखें फिजा में बुलंद हो रही थी। जिनजादे का चेहरा और ये मंजर देखकर अनम मेरे पीछे छुपी हुई थी। छोड़ दो खुदारा, गलती हो गई है, मैं कुछ नहीं करूँगी। मम्मानी ने काफ़ी तशद्दुद के बाद चिल्लाकर माफ़ी मांगना शुरू कर दी। और तुम मुलाजमा होकर गलत कामों में मुलव्वस हो, ज़रा शर्म लिहाज नहीं है? जिनजादे ने दूर खड़ी मुलाजमा के साथ भी वही किया जो उसने मम्मानी के साथ किया था। छोड़ दो इन्हें, इसके भी बच्चे हैं। अब अगर ये कुछ करेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। नानू ने काफ़ी देर बाद उन दोनों को मार पीटने के बाद जिनजादे से कहा। ये अगर बाज ना आई तो? जिनजादे ने रुक कर पूछा। वो उस पल जलाल में था, जैसे अभी उसे जलाकर भस्म कर देगा। हम तुम्हें दोबारा बुला लेंगे, फिर जो दिल चाहे तुम वो कर देना। अब छोड़ दो। नानू ने सर तासुरात लिए मम्मानी को देखते हुए जवाब दिया था। अच्छा ठीक है, आज की माफ़ी है। जिनजादे ने बात मान ली और उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। फिर उस जिनजादे की मदद के बाद मम्मानी ने कभी भी हमें कुछ कहा नहीं था। हमेशा अपने बच्चों की तरह से हमारा ख्याल रखा। मामू तो पहले ही घर के मामलात से काफ़ी दूर थे, लेकिन जिनजादे के सबक ने मम्मानी को शदीद खौफजदा कर दिया था। नानू भी अपने पैरों पर चलना शुरू कर चुकी थी। अब तो वो भी हमारा खूब ख्याल रखती थी। बाबा के कारोबार का हिसाब लेकर, पैसे मामू से लेकर हमें हमारी पसंद की चीज़ें ला कर देती थी। इसके अलावा जो कागजात मम्मानी ने छुपा कर रखे हुए थे, वो भी जिनजादे ने मम्मानी से लेकर नानू को दे दिए थे। इसी के बायस तो नानू ठीक हुई थी। उसने फिर कुछ मंत्र पढ़े थे, जिससे मेरी नानू की जहनी हालत और माजूरी यकलख्ती ख़त्म हो गई थी। नानू ने हमारे पुराने स्कूल में हमें दाखिल करवा दिया था और साथ ही ट्यूशन भी लगवा दिया। कितने अरसे तलक हमने पढ़ाई नहीं की थी, उसका भी काफ़ी हर्ज हो गया था। उसके लिए हमें एक बहुत अच्छे ट्यूशन की ज़रूरत थी। नानू और मामू ने हमारा जी जान के साथ ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद सब कुछ मामूल पर आ गया था। बस इस सब में हमारे वालिदैन साथ नहीं थे, जिनकी कमी हमें खलती थी, लेकिन इतना काफ़ी था कि हम दोनों बहन भाइयों से जुल्म सितम मुकम्मल बंद हो चुका था, जिसने हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा था।
نہ ہم پڑھائی کر پاتے تھے اور نہ ہی 2 وقت کا ہمیں اچھا کھانا ملتا تھا، اور اس سب سے نجات دلانے والے جنزادے کا ہم آج تک تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔